میں اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر 3000 تو بڑی بات ہے، 3 روپے لینے کا بھی ہم نے دل میں ارادہ کیا ہو تو اللہ تعالی ہمیں دنیا ہی میں تباہ اور برباد کر دے۔ دوستو میں محمد آصف کمال سیفی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز عوام تک۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ نیوز عوام تک کے مادھیم سے علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ کے حوالے سے ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کیونکہ ایک آڈیو بہت زیادہ مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے وائرل کی جا رہی تھی جو کہ نذرانے کو لے کر کی تھی۔ تمام تر آڈینس نے جب اس آڈیو کو سنا تو کہیں نہ کہیں آڈینس اس چیز کے متمنی تھے کہ مفتی صاحب قبلہ کی طرف سے کوئی وضاحت نامہ منظر عام پر آئے۔ آئیے میں آپ کو سنواتا ہوں وہ وضاحت نامہ، اس لیے کہ وضاحت نامہ تو آ چکا ہے، وضاحت نامے کے آنے کے بعد مدعا بالکل ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب مدعے نے اور زیادہ طول پکڑ لیا ہے، اور زیادہ طول اس لیے پکڑ لیا ہے کیونکہ مفتی صاحب قبلہ کی طرف سے ایک مخفی بات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ مخفی بات کیا ہے وہ میں آپ کو مکمل طور پہ سمجھاؤں گا، بتانے کی کوشش کروں گا، بات کروں گا اس کے حوالے سے، لیکن میں آپ سے بتا دوں مفتی صاحب قبلہ نے کہا کیا ہے، پہلے آپ اس کو سنیے گا۔ راز کو سنیے۔ میں جب ستمبر میں وہاں تقریر کرنے کے لیے گیا تو جب میں تقریر کر کے وہاں سے فارغ ہوا تو یہ دونوں مولانا، یا تو یہ نواب جان تھے جنہوں نے بات کی تھی فون پر، یا جنہوں نے بعد میں میری بات پر حاشیہ لگایا تھا اور آڈیو میں اضافہ کیا تھا، یہ مولانا میشر یا یہ تھے، ان دونوں میں سے کوئی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، چونکہ ان سے میری پہلی ملاقات تھی، ایک ہی بار دیکھا، میں اچھے سے جانتا پہچانتا نہیں انہیں، انہوں نے کہا حضرت جو آپ کو نذرانہ دیا گیا ہے ہمارے چندوئی میں، اس میں سے 3000 روپے آپ ہمیں دیجیے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو کس لیے دوں؟ کہا حضرت ہم اگر کسی مولانا کو بلاتے ہیں تو اس سے ہم یہ لیتے ہیں، ہمارے بھی خرچے ہیں، ہمارا بھی پیٹ ہے، ہم اس لیے آپ کو نذرانہ جو ہے دلائے ہیں کہ آپ اس میں سے 3000 مجھے دے دیں۔ یا تو یہ مولانا میشر تھے یا یہ مولانا نواب جان تھے جنہوں نے مجھ سے 3000 کی ڈیمانڈ کی، بولے ہم سب سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ جس سے لیتے ہو گے، میں اس میں کا خطیب نہیں ہوں کہ میں کمیشن کے 3000 روپے آپ کو دوں، میں نہیں دے سکتا۔ اور اگر آپ یہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ابھی میں بلاتا ہوں گھر والوں کو جہاں پروگرام میں بلایا اور ان سے یہ بات کرتا ہوں، تو انہوں نے میرے ہاتھ جوڑے، کہا خدا کے لیے مت بتاؤ حضرت، ہم آپ سے نہیں مانگیں گے۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، میں نے کہا یہ غلط ہے، آپ غلط طریقے سے جو ہے مجھ سے مانگ رہے ہو، کسی بھی عالم سے آپ مانگتے ہیں، یہ غلط ہے طریقہ آپ کا۔ تو اس وقت انہوں نے ہاتھ جوڑے، بولے حضرت اب نہیں مانگیں گے، اب نہیں کریں گے۔ جی ہاں دوستو، یہ مفتی صاحب قبلہ کی طرف سے وضاحت نامے کے طور پہ جو مفتی صاحب قبلہ ہی کے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے، وہ بہت لمبا ویڈیو ہے، میں نے مختصر سا آپ کو چلا کر کے دکھایا ہے۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مفتی صاحب قبلہ نے کون سی مخفی بات کو اجاگر کیا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کا کہنا ہے کہ جب میں پہلے اس بستی میں جلسے میں گیا تھا اور جلسے کے بعد جیسے ہی میں فارغ ہو کر کے آ رہا تھا تو مجھ سے یا تو نواب جان نے یا پھر امام صاحب قبلہ نے، مولانا مہشر جن کا نام ہے اور منصب امامت پر یہ اسی بستی میں فائز ہیں، یہ فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر لگا ہوا۔ مفتی صاحب قبلہ کا کہنا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے، واللہ عالم، لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے 3000 روپے کا مطالبہ کیا رشوت کے طور پہ۔ اب میں آپ کی ذہنیت کو قریب کر کے ایک اور بات میں آپ سے بتا دوں، اس لیے کہ میں نیوز عوام تک کے مادھیم سے ایک سچائی آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ کے پاس ایک اپنا چینل ہے اور اپنے چینل کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو بہت آسانی کے ساتھ اپنے تمام تر آڈینس میں شیئر کر دیتے ہیں، لیکن اس بستی والوں کے پاس کوئی نیوز کا چینل نہیں، کوئی ویسا چینل نہیں، کوئی بڑا پاپولر چینل نہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو منظر عام پر لا سکیں۔ تو ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں سے رابطہ کیا اور ایک ویڈیو مجھ تک پہنچایا ہے، وہ ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں، لیکن وہ بات سن لیجئے گا، اس لیے کہ مفتی صاحب قبلہ نے کہا کہ یا تو نواب جان نے یا پھر امام صاحب قبلہ نے مجھ سے 3000 روپیہ رشوت کا مانگا، میں نے دینے سے منع کر دیا، میں نے کہا کہ صاحب خانہ کو میں بلواؤں گا تب میں آپ کو 3000 روپیہ دوں گا۔ تو ایسی سچویشن میں نواب جان بھی اور امام صاحب قبلہ بھی میرے آگے ہاتھ پیر جوڑنے لگے، مجھ سے توبہ و استغفار کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیجئے گا حضرت، ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ بہر کیف معاف کر دیا، مفتی صاحب قبلہ تشریف لے آئے، لیکن اب آپ سنیے گا، اس لیے کہ مفتی صاحب قبلہ کا یہ کہنا کہ میں صاحب خانہ کو بلواؤں گا، وہ جو نواب جان نام کا لڑکا ابھی جو ذکر میں نے کیا، میں پھر سے اسکرین پر فوٹو لگائے دیتا ہوں، جس تقریب میں مفتی صاحب قبلہ کی شرکت ہوئی تھی وہ نواب جان کے سگے بھائی کے انتقال کے بعد ایصال ثواب کی تقریب تھی، جس میں کہ نواب جان نے اس میں کوئی عوامی چندہ نہیں کیا تھا بلکہ اپنی جیب خاص سے وہ جلسہ کروایا تھا، جس میں نعت خوانی کے حوالے سے رامپور سے جناب طاہر رضا رامپوری کو مدعو کیا تھا، مفتی صاحب قبلہ کو خطابت کے لیے مدعو کیا تھا، جبکہ نواب جان نے اپنی جیب خاص سے وہ پیسہ نذرانے کے طور پہ ان دونوں کو پیش کیا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص جیب خاص سے اپنے گھر پہ جلسہ کرانے کے بعد جیب خاص سے اگر کوئی پیسہ دے تو پھر وہ 3000 روپے کا مطالبہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس نے تو اپنا شخصی پروگرام کہیے گا، اس کا اپنا ذاتی پروگرام تھا، عوامی کوئی چندہ نہیں تھا۔ عوامی اگر چندہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان کی ذہنیت مشکوک ہو جائے کہ کہیں نہ کہیں پیسے میں گھپلا کر دیا ہو،
लेकिन नवाब जान ने अपनी जेब खास से पैसा दिया था। चलिए एक और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा नवाब जान ने अपनी ज़बान से क्या कहा। लेकिन अब यहाँ हम और आप ये सोच सकते हैं कि अगर नवाब जान ने पैसा नहीं मांगा तो हो सकता है कि इमाम साहब क़िबला ने नजराने का मुतालबा कर लिया हो, रिश्वत का मुतालबा कर लिया हो, इसलिए कि नवाब जान के तो घर का प्रोग्राम था, इमाम साहब के घर का प्रोग्राम थोड़ी था। इमाम साहब ने हो सकता है कि 3000 रुपया मांग लिया हो। मुफ्ती साहब क़िबला का ये कहना कि इन दोनों में से किसी एक ने 3000 रुपया मांगा है, मैं सिर्फ आवाम के निगाहों के सामने उन बातों को रखना चाहता हूं। मैं मुफ्ती साहब क़िबला की मुखालफत में इस वीडियो को नहीं ला रहा हूं और ना ही मैं इमाम साहब क़िबला की हिमायत में ला रहा हूं। मुफ्ती साहब क़िबला ने अपने चैनल के जरिए से अपनी बात रखी और उस बस्ती के लोगों ने कांटेक्ट किया और वो अपनी बात को तमाम तर ऑडियंस में शेयर करना चाहते हैं। हमने आपसे ये कहा कि हो सकता है कि नवाब जान ने मुतालबा ना किया हो लेकिन इमाम साहब ने कर लिया हो, इसलिए कि इमाम साहब के घर की वो तकरीब थोड़ी थी, इमाम साहब ने रिश्वत का 3000 रुपया मांग लिया हो। लेकिन आइए एक वीडियो जो हम आपको दिखाने वाले हैं, इस वीडियो को आप देखिएगा। और इस वीडियो को मैं जो चला रहा हूं ना, उसको चलाने की खास वजह यह है कि इमाम साहब क़िबला इस वीडियो में तनहा नहीं है। अगर तनहा होते तो मैं न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से कतई आपके सामने इस वीडियो को लेकर के नहीं आता, इसलिए कि मैं खुद दानिश्वर हूं इस चीज़ के हवाले से कि हो सकता है इमाम साहब क़िबला ने तन्हाई में वीडियो बनाया और अपनी सफाई पेश की और तमाम तर लोगों को गुमराह कर दिया। लेकिन अब जो वीडियो मैं चलाने वाला हूं ये तन्हा इमाम साहब क़िबला की वीडियो नहीं है, बल्कि इमाम साहब क़िबला के साथ में उनके तमाम तर मुसल्लियान खड़े हुए हैं और बाशरा लोग खड़े हैं, जिम्मेदार लोग खड़े हुए हैं। उन्हीं की मौजूदगी में इमाम साहब क़िबला ने वजाहत की है कि वाकई उन्होंने 3000 रुपया लिया है या नहीं लिया है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरदरान इस्लाम, मैं महशर रज़ा क़ादरी ग़ुलामाने गौसो ख्वाजा बरज़ा उनका खादिम हज़रात उन चीज़ों को पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और ये वीडियो इसलिए वायरल किया जा रहा है कि आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि मुफ्ती गुलफाम साहब के ताल्लुक़ से जो नजराने के ताल्लुक़ से फतवा लगाकर वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने इस चीज़ का हम पर पूरा मुअम्मा थोपा और थोपने के बाद वो जो कुछ मामलात हुए वो बहुत सारी बातें हैं, मैं उनको बयान नहीं करता। लेकिन उन्होंने जो हम पर तोहमत लगाई है, मैं महशर रज़ा और नवाब जान, ये दोनों लोगों का उन्होंने नाम लेकर के ये कहा है कि मैं चंदोई में पीछे एक प्रोग्राम में, वो दिसंबर के महीने में आए थे, शायद सितंबर के महीने में चंदोई में आए थे और चंदोई वालों ने उन्हें जो नजराना दिया, उस नजराने में से इन दोनों लोगों ने यानी नवाब जान ने और महशर रज़ा ने 3000 रुपये की रिश्वत का मुतालबा किया। और जब उनसे ये रिश्वत मांगी गई तो उनसे कहा गया कि आप हमें दीजिए और नहीं देंगे तो हम आपकी तारीख नहीं करवाएंगे। यानी ये कहा गया कि जो भी मौलवी आते हैं हम उनकी तारीख करवाते हैं तो उनसे हम रिश्वत लेते हैं। फिर मुफ्ती साहब ने कहा, वो बयान कर रहे हैं कि मैंने कहा कि मैं तुम्हारे परिवार वालों से शिकायत कर दूँगा, तो वो ये बयान कर रहे हैं कि हम हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो गए। भाइयों, ये इतने लोग जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं आपको, आप देख रहे होंगे, ये सब इसी बस्ती के रहने वाले हैं, मेरे मुक्तदी हैं। मैं नाचीज़ इस मस्जिद का इमाम हूँ, जिस मदरसे में खड़े होकर के वीडियो बना रहा हूँ। ये मस्जिद और मदरसा दोनों मुत्तसिल हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाए, क्योंकि जो दूध का दूध पानी का पानी है वो इस वीडियो के ज़रिए आज हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो झूठा और मक्कार है। हजरात, बात सुनिए आप मेरी बात को पहले कि मुफ्ती साहब ने जिस जलसे का जिक्र किया है, जिस जलसे में रिश्वत लेने का मुझ पर और मौलाना नवाब जान पर ऐब लगाया है, वो जलसा कोई आवाम नास का, लोगों का, गांव का चंदा करके जलसा नहीं कराया हुआ था। आप लोग शाहिद हैं इस बात पर? जी जी जी। वो जलसा चंदा करके नहीं कराया गया था, बल्कि ये नवाब जान साहब हैं, इनके छोटे भाई छंगा खां का इंतकाल हो गया था, जो 18 साल की उम्र में किसी बीमारी की वजह से, तो इन्होंने अपने भाई के 40वें के मौके पर ईसाल सवाब के लिए जलसा कराया था। और ये नवाब जान साहब हैं, इनका वो भाई था छोटा, और ये खलीजान भाई हैं, इनका वो लड़का था छंगा, जिसका नाम है, जिसका इंतकाल हुआ था। इन्होंने अपना ज़ाती जलसा कराया था। अब आप खुद ही ये फैसला फरमाएं कि जब इन्होंने जलसा कराया था तो उसका नजराना भी इन्हीं लोगों ने अपने हाथ से, अपनी जेब से दिया था। आपने दिया था? नहीं दिया था, इन्होंने दिया था। और देने के बाद इन्होंने विदा किया था। मुझे तो पता भी नहीं, मैं इस बस्ती के मस्जिद का इमाम हूँ, मैं अपनी मस्जिद में आकर के सो गया। अब जब उन पर फतवा लग गया और उन्होंने शरीयत के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, नजराना तय करते हैं, मांगते हैं, बहुत सारी बातें हैं, जब फतवा लग गया तो उन्होंने उसको फतवे की बुराई को हटाने के लिए
यानी राह फरार तलाश कर रहे हैं, और उन्होंने इस फतवे से बचने के लिए इस चीज़ को इख्तियार किया कि हम पर तोहमत लगाई, झूठी तोहमत कि इन लोगों ने 3,000 रुपये मुझसे तलब किए थे। पहली बात तो ये कि मुफ्ती साहब यूँ ज़बान से कह देना कोई माने नहीं रखता है, आपको सबूत पेश करना पड़ेगा कि 3,000 रुपये पेश किए। दूसरी बात, कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा कि मौलाना नवाब जान साहब अपनी जेब से पैसे दे करके खुद रिश्वत तलब करेंगे? ये कितनी जो है वो नाहज़म होने वाली बात है। और ये तमाम मस्जिद के मिंबरान हैं। मुफ्ती गुलफाम साहब उसमें ये भी कह रहे हैं कि मैं चंदोई के लोगों से इल्तिजा करूँगा कि ऐसे इमाम को ना रखें, ऐसे इमाम से इमामत ना करवाएं। मुफ्ती गुलफाम साहब, आप मेरी इस वीडियो को देखें और सुनें और समझें। आपको चाहिए कि उलमा इकराम के फतवे को आप एक्सेप्ट करें, आपको उस पर अमल करना चाहिए था, आपको उस पर रुजू करना चाहिए था, आपको उसको कबूल करना चाहिए था, लेकिन आपने बजाय उसके कबूल करने के आपको तौबा करनी चाहिए थी, लेकिन आपने बजाय तौबा करने के उस पर आप अपने करने पर जिद पर अड़ गए हैं और आपने हमारे ऊपर तोहमत लगा दी, आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि 3,000 रुपये जो है वो रिश्वत मांगी। मैं अल्लाह के रसूल को हाजिर और नादिर समझ करके इस बात की गवाही देता हूँ कि अगर 3,000 तो बड़ी बात है, 3 रुपये लेने का भी हमने दिल में इरादा किया हो तो अल्लाह ताला हमें दुनिया ही में तबाह और बर्बाद कर दे। और हजरात, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, ये मौलाना नवाब जान साहब हैं, बताइए इनके दिल पर क्या गुजरी होगी। इनका जवान भाई 18 साल का ख़त्म हुआ, ये खलीजान भाई हैं, इनका बेटा ख़त्म हुआ 18 साल का, और उस जलसे में मुफ्ती गुलफाम साहब को बुलाया, तकरीर कराई और अपनी जेब से इन्होंने नजराना दिया और उसी नजराने में से ये उनसे कमीशन तलब करेंगे। ये बताइए कहाँ की ये जो है वो इनकी हक़ की बात है और इंसाफ की बात है। हजरात, ये बिल्कुल गलत और झूठी बात है, ये हम पर तोहमत लगाई गई है, ये हम पर इल्ज़ाम लगाया गया है। मैं कहना ये चाहूँगा कि ये अब भी अगर लोगों को यकीन ना आए और अब भी अगर सब्र ना आए और अब भी अगर मुतमईन ना हो तो जहाँ चाहें वहाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बस्ती वालों के लिए साथ लेकर आने के लिए तैयार हूँ। मैं गवाही दूंगा वहाँ पर, मैं साबित करूँगा वहाँ पर, और मुफ्ती गुलफाम साहब साबित कर दें कि 3,000 रुपये मुझसे रिश्वत मांगी थी, तो मैं इंशाअल्लाह अहद उठाता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी कहीं पर इमामत नहीं करूँगा। मेरा बैग तैयार रखा है, मैं चाहे कैसे भी ज़रिया माश करूँ लेकिन इमामत नहीं करूँगा। और अगर ये बात साबित नहीं हुई तो मुफ्ती साहब को भी ये वादा करना पड़ेगा और ये जो है वो अहद करना पड़ेगा कि कभी आज के बाद वो मिंबर रसूल पर नहीं चढ़ेंगे, तकरीर करने कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? कि उन्होंने एक जो है वो बेगुनाह आदमी पर तोहमत लगाई, छुपाने के लिए तोहमत लगा रहे हैं, अपना झूठ छुपाने के लिए हम पर तोहमत लगाई। भाई, तुम पर जो फतवा लग गया शरीयत की तरफ से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, बात खत्म थी, लेकिन उसको बड़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझसे माफ़ी मांगी। और उसमें वीडियो में बहुत सारी बातें हैं कि मुझसे जब माफ़ी मांग रहे थे तो कहने लगे कि हमारे घर वालों से मत कहना। वो भी कह रहे हैं मैं उनको जानते भी नहीं हैं और कह रहे हैं माफ़ी भी मांग रहे थे। तो बताइए, जो आदमी माफ़ी मांगेगा आखिरकार ये उसको कैसे भूल सकते हैं? भाइयों, ये गौर करने का मकाम है। मैं हुजूर अहसन मियाँ सज्जादा नशीन, हुजूर जो है वो असजद रज़ा खां कादरी की बारगाह में हाजिर होकर भी इनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। ये साबित कर दें, मैं इंशाअल्लाह उसी दिन से इमामत करना छोड़ दूँगा। उसी दिन से मैं इंशाअल्लाह अपनी इस चीज़ से इमामत से बर्खास्त हो जाऊँगा। और अगर मुफ्ती साहब साबित ना करें तो मुफ्ती साहब को भी खिताबत का काम बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा और इस चीज़ का वादा उठाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। ये तमाम लोग मेरे मौजूद हैं, इन लोगों की मौजूदगी में मैंने इसलिए वीडियो बनाया ताकि आपको यकीन हो जाए। अभी तक तो लोग मुझे यही समझ रहे थे कि रिश्वत खाने वाला है। और ये नवाब जान साहब हैं, इन्होंने अपने भाई के 40वें में प्रोग्राम कराया था, वो कोई आम जलसा नहीं था बल्कि इनका घर का जलसा था। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपकी निगाहों के सामने मुफ्ती साहब क़िबला का भी वो वजाहतनामा रखा और उसके बाद इमाम साहब क़िबला ने क्या सफाई पेश की वो भी आपकी निगाहों के सामने रखा। आप अगर वीडियो में आखिर तक बने हैं तो इस पूरे मामले को आपने कैसा देखा, मुकम्मल सहनियत को अपनी कमेंट बॉक्स में रख करके जाइएगा। इस पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, उस कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात पेश कीजिएगा, अपनी फिक्र पेश कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।